Sri Chaitanya Charitamrita, first chapter, and this first chapter, there's a glorification, and there is a prayers for the spiritual master also. So spiritual master, the name of the chapter is, or we will directly jump on the verse first. Vande Guru Isha Bhaktan Isham Ishavatarakan Tat Prakasham Tat Shakti Krishna Chaitanya Samgyakam. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnation, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Shri Krishna Chaitanya. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditau Gaudodaye Pushpavantau Chiratau Chitrau Sandau Tamonudau. I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance, and thus wonderfully bestow benediction upon all. So Gauda is Bengal, okay, Gauda Desh कई बार कहते हैं इसको. Text third. यद अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो यैः भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह. What the Upanishad describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body. उपनिषद जिसका वर्णन करते हैं कि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, वो क्या है? भगवान कृष्ण की ही ज्योति है. ओके, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य एकांत सुखस्य एकांतकस्य च. 14th चैप्टर में ये लास्ट वर्सेस में से एक वर्स है, गीता में आता है, भगवद गीता के 14th चैप्टर में. सो द लॉर्ड नोन एज द सुपर सोल, परमात्मा ऑल्सो, is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead, Krishna himself, full with 6 opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. Text number 4th. Anarpita charim chirat karunayavtirnah kalo samarpayitum unnato jwala rasam swabhakti shriyam हरिः पुरटः सुन्दरद्युति कदम सन्दीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतो वह सचीनंदनः. Very important verse. This is one of the very important verse. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before. जो कभी भी उपलब्ध नहीं करवा के दिया वो महाप्रभु ने दिया है. The most sublime and radiant mellow of devotional service, the feeling of conjugal love. अनार्पित, किसको भी अर्पित नहीं किया अभी तक. करुणया अवतीर्ण, जो करुणा सागर है हमारे महाप्रभु है, वो अवतरित हुए नित्यानंद और महाप्रभु. और समर्पित तुम उन्नत उज्ज्वल रसा, उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान कर रहे हैं, जो कि माधुर्य रस. ओके, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उसका प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए हैं, स्वभक्ति, अपनी निज भक्ति देने के लिए. तो इसलिए महाप्रभु जैसे कृपालु कोई नहीं है. राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मानवपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चैक्यम् आप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम. The loving affairs of Shri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure giving potency. अंतरंगा शक्ति, जो भगवान और कृष्ण राधा रानी के जो लीला है वो अंतरंग शक्ति द्वारा स्फुरित है.
आह्लादिनी शक्ति, भगवान की आनंद देने वाली शक्ति आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। सो भले ही राधा और कृष्ण अस्तित्व में एक ही हैं, ओके, पर वह उनमें भेद क्यों है? लीला करने के लिए। वो दो क्यों बने? लीला करने के लिए। वही दो जो दिव्य व्यक्ति है, जो दिव्य युगल जोड़ी है, वो फिर से एक हो गए। किसमें? श्री कृष्ण चैतन्य में। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य में नमन करता हूँ जो अपने आप को प्रकट किए हैं। कैसे प्रकट किए हैं? भाव जो है और वर्ण जो है, जो उनका जो रंग है, जो भाव है, वो श्रीमती राधा रानी का लेके आए हैं, भले ही वो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजनी शचिगर्भ सिंधौ हरिन्दुः। Describing desiring to understand the glory of Radharani's love, इच्छा प्रकट करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसा है। उनमें इतने अद्भुत गुण जो हैं, जो भगवान कृष्ण में, द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम दैट शी अलोन रिलिशियस, श्रीमती राधा रानी ही एक में ऐसी है कि जो आनंद लेती हैं, रसास्वादन करती है, भगवान कृष्ण के गुणों का आस्वादन करती हैं, और स्वयं कृष्ण ये नहीं कर पा रहे हैं। और जो सुख वो अनुभव कर रही है, जो माधुर्य वो अनुभव कर रही हैं, जो वो भगवान नहीं कर पा रहे, भगवान हरि नहीं कर पा रहे। भगवान हरि की सुंदरता, भगवान हरि की लीलाओं में, भगवान हरि के संग में जो माधुर्य, विरह भाव में भी जो आनंद का आस्वादन करे, वो भगवान कृष्ण नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई व्हेन राधा रानी रियलाइजेस द स्वीटनेस ऑफ हिज लव, द सुप्रीम लॉर्ड हरि richly endowed with her emotions, उनके भाव को, उनके इमोशंस को लेते हुए श्रीमती सची देवी, सची माता के गर्भ में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा जो है सागर में प्रकट होता है, सागर के तट पर प्रकट हुआ दिखता है। एक्चुअली सागर से प्रकट नहीं होता है कभी चंद्रमा, पर फिर भी ऐसे प्रतीत होता है। उसी प्रकार सच्ची माता से प्रकट तो है जिस प्रकार चंद्रमा प्रकट होता है। संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोब्धयशायी शेषश्च यस्यां शस्कलाः सनित्या नंदाख्या रामः शरणं ममास्तु। May Shri Nityanand Ram be the object of my constant remembrance. संकर्षण, शेषनाग एंड द विष्णुस, यहाँ पे 3 विष्णु के नाम लिए और भगवान के विस्तार स्वरूप जो है संकर्षण और शेषनाग। संकर्षण यानी शेषनाग। 3 विष्णु क्या है? कारणदक्षाय विष्णु, गर्भादक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। यहाँ पे क्या आंसर लिखा है? उलाई ऑन द कारण ओशन, गर्भ ओशन, ओशन ऑफ मिल्क है। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और उनके जो एक्सपांशंस हैं और उनके जो विस्तार स्वरूप है उनको नमन करते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णाश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यां ताम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो यहाँ पे जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो प्रणाम अर्पित कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। नित्यानंद राम के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे शरणागत हूँ, जो संकर्षण के नाम से भी सब प्रसिद्ध हैं। और संकर्षण इज इन द मिड्स ऑफ द चतुर्व्यूह। जैसे पहले भी हमने सुना था कि चतुर्व्यूह जो है, भगवान कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं और बलराम से चतुर्व्यूह जो प्रकट होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। और फिर उनसे बाद में आगे चलकर 3 विष्णु प्रकट होते हैं संकर्षण से। सो ये विस्तार स्वरूप जो इसमें डिटेल जो पास टाइम्स आप देखेंगे जो सृष्टि के, वो चैतन्य चरितामृत में आपको पाए जाएंगे। सो ही पजेस फुल ऑपुलेंस एंड रेसाइड्स इन वैकुंठ लोक। ओके, नित्यानंद राम के पास सभी ऐश्वर्य हैं और वैकुंठ में वास करते हैं, विच इज़ फार बियॉन्ड द मटीरियल क्रिएशन। भौतिक जगत के ऊपर, भौतिक जगत 14 भुवन का जो लोक है, भौतिक जगत जैसे अनेक यूनिवर्सेस हैं, क्लस्टर्स ऑफ यूनिवर्सेस हैं, उसके ऊपर जो है विरजा नदी को पार करने के बाद ब्रह्म ज्योति के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है। माया भरता जांड
संघाश्रयांगः शेते साक्षात् कराणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस्तां श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। सो फिर से वंदना कर रहे हैं श्री नित्यानंद राम की, जो कि ही इज अ पार्शियल representation called Karanadakshaya Vishnu, lying on Karana ocean, is the original Purusha, the master of illusion energy and the shelter of all the universe. कारण सागर में कारणदक्ष विष्णु के रोम से सभी ब्रह्मांड बनते हैं, इसलिए सभी ब्रह्मांड का आश्रय स्थान कारणदक्ष विष्णु है। यस्यां शां सहस्रील गर्भोदशाई यन्नाभियब्जं लोक संघातनालम लोकसृष्टुः श्रुतिका धाम धातुस् ताम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो फिर से नित्यानंद राम जी को वंदना कर रहे हैं कि अ पार्शियल पार्ट ऑफ होम, मतलब नित्यानंद के ही जो अंश स्वरूप है वो गर्भोदक्ष विष्णु भी हैं, बाकी विष्णु भी हैं, और जो गर्भोदक्षिणी के नाभि से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। और द स्टेम ऑफ दैट लोटस, जो नाभि है, द स्टेम ऑफ दैट लोटस इज रेस्टिंग प्लेस ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ प्लैनेट्स। और स्टेम ऑफ द लोटस जो है, लोटस का जो स्टेम है, उसके अंदर सभी 14 भुवन पाए जाते हैं। यस्यां शां सह परात्मखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशै क्षौणी भरता यत्कालसोऽप्यनन्तस्तां श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। फिर से नित्यानंद राम के लिए प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, जो कि who is a secondary part, उस सेकेंडरी पार्ट इज द विष्णु लाइंग इन द ओशन ऑफ मिल्क। क्षीरोदक्षाय विष्णु भी उनका विस्तार स्वरूप है। क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? परमात्मा। कभी भी परमात्मा का जब नाम होता है, परमात्मा जब बोला जाता है, तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। क्षीर सागर में जो शयन अवस्था में है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, of all living entities and the maintainer of all universes. Sheshnag is his further subpart. महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यः सृजति यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। तो यहाँ पे पहले जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी को, उनके रहस्य को भी बताया जा रहा है, कौन किसके क्या अवतार, ये भी कभी कभी बताया जाता है, तो थोड़ा समझ सकते हैं। अद्वैत आचार्य वो कौन है? महाविष्णु के ही अवतार है। And his main function is to create the cosmic world through the action of Maya. Advaita Marinaadvaitat Acharyam Bhakti Samshanat Bhaktavataramisham Tam Advaitacharyam Ashraye. Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. Okay? द्वैत और अद्वैत, द्वैत यानी दो लोग, दो होता है, तो वो एक ही है। किससे एक है? वो हरि से एक ही है। हरि और उनमें कोई भेद नहीं है। सो ही इज कॉल्ड अद्वैत बिकॉज ही प्रोपेगेट्स द कल्ट ऑफ डिवोशन। ही इज कॉल्ड आचार्य। आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवान भागवत धर्म का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं। ही इज द लॉर्ड एंड द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड इज डिवोटी। ओके, वो भगवान भी है, साथ साथ भगवान के भक्त का भी अवतार है, भक्ता अवतार है। देयरफॉर आई टेक शेल्टर ऑफ हिम। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, ये इंपॉर्टेंट प्रेयर है जो कि हम मंगलाचरण में बोलते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee and devotional energy. Okay? तो भक्तावतार में कौन है? ये भक्तावतार में भी है, ऐसे श्रीवास है, श्रीवास जी हैं। भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। शक्ति भी भगवान की है और राधा रानी का भी अवतार है। तो ऐसे अलग अलग करके पंच तत्व जो है, चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर। ओके, स्वर एक्सपांशन ऑफ अ डिवोटी, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ऐसे पूरे मिला के पंचतत्व का प्रेयर है।
जयताम सुरतो पंगोर. सो व्हेन वी रिसाइट दिस वर्स वी विल बी एबल टू नो द मंगलाचरण जो बोलते हैं. अब ये भी मंगलाचरण के अर्थ आपको समझ में आएंगे. जयताम सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ. अभी राधा मदन मोहन जी के लिए प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं. पंगोर, पंगोर यानी वन हु इज लेम. मराठीमध्ये बोलतात ना पांगळा, लुळा पांगला बोलते, पांगळा बोलतात त्याला. तो पंगोर, वन हु इज लेम. ओके. एंड इल एडवाइज्ड. आई एम ए लेम एंड इल एडवाइज्ड. येट दे आर माई डायरेक्टर्स. मुझे कुछ नहीं आता, मैं असमर्थ हूँ, फिर भी मुझे मार्ग दिखाने वाले कौन है? राधा मदन मोहन. ये मुझे डायरेक्शन दिखाएंगे. एंड द लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी. उनके चरण सब कुछ मेरे लिए है. सर्वस्व, सर्वस्व मेरे लिए क्या है? पदाम भोज. उनके चरण. किनके चरण? श्री राधा मदन मोहन. दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. तो दिव्य, दिव्याद वृंदारण्य, दिव्याद इज शाइनिंग एंड वृंदारण्य सबको वृंदावन पता चला. कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री. सो इन द टेम्पल ऑफ ज्वेल्स इन वृंदावन, वृंदावन नमस्ते दिव्य चिंतामणि धाम. वृंदावन कैसे? दिव्य चिंतामणि धाम है. और इसमें क्या है? वहां पे कल्प वृक्ष के नीचे कौन है? श्री श्री राधा गोविंद, जो किनके द्वारा सेवित है? उनके बहुत ही निजी संगी जो है, और उनको राधा गोविंद को एकदम उन्नत आसन, उच्च आसन में बिठाया गया है. ऐसे में भक्त जो है उनको प्रार्थनाएं अर्पित करता है, प्रणाम कर रहा है. प्रेष्ठारे भी सेव्यमानि स्मरामि. श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणु स्वणैर गोपीर गोपीनाथ श्रीस्तु नः. तो अभी प्रणाम मंत्र पहले हमने सुना. प्रणाम मंत्र कौन सा? राधा मदन मोह. अभी कौन सा प्रणाम मंत्र है? श्री राधा गोपीनाथ. श्री शील गोपीनाथ who originated the transcendental mellow of the Rasa dance stands on the shore in Vamshivata and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they confer upon us their benediction. यहाँ पे आशीर्वाद की अभिलाषा कर रहे हैं जो वंशीवट पे खड़े हैं, त्रिभंग ललितम, और वो अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ गोपीस. तो उनको मैं नमन करता हूँ. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. सभी बोलिए. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय तीन ठाकुर गौड़ी. जय तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छे ना आत्मसात ए तीनेर चरण वंदो तीन मोर नाथ. तो तीन विग्रहों को पूज रहे हैं, तीन विग्रहों की प्रार्थनाएं कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, who have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas. इसलिए कभी भी गौड़िया वैष्णव जो है वो एटलीस्ट इन मंदिरों को दर्शन तो करते ही है वृंदावन में. एंड आई वर्शिप देयर लोटस फीट फॉर दे आर द लॉर्ड्स ऑफ माई हार्ट. ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं. सो द ऑथर ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत, पर्पट रिटन बाय श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. द ऑथर ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत, author of Sri Chaitanya Charitamrita offers his respectful obeisances unto the three deities. Okay, these three deities, Radha Madan Mohan, Radha Govind Dev, or Radha Gopinath. So the three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas. So we have to understand that actually the original deities are where? You know that? They are in Jaipur. आप लोग ने, so in Jaipur, that's why Jaipur is called Gupta Vrindavan. These three deities are the life and soul of Bengali Vaishnavas. The Gaudiya Vaishnavas who follow strictly in the line of Chaitanya Mahaprabhu worship the divinity by chanting transcendental sounds meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Supreme Lord, a reciprocation of the mellows of mutual affection, and ultimately the achievement of the desired success in loving service. So
प्रयोजन के लिए विग्रह है, संबंध और अभिधेय के लिए अलग अलग विग्रह है। तो पहले ही बता चुके, संबंध ज्ञान यानी भगवान का और मेरा संबंध क्या है, उसके लिए हमको किसको वर्षिप, किससे आशीर्वाद लेना चाहिए, राधा मदन मोहन। अभिधेय के लिए भगवान को प्राप्त करने की साधना क्या है, कैसे करना है, इसके लिए गोविंद जी। अब प्रयोजन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वृंदावन रास मंडल प्रवेश करने के लिए इस जीवन में व्यक्ति को गोपीनाथ जी के अर्च विग्रह के आशीर्वाद लेनी चाहिए। He who pleases the senses and the cows, that is Govinda. Okay, मदन मोहन he who charms the Cupid, जो मदन को मोहित करने वाला मदन मोहन। गोविंद यानी जो गैयों को और इंद्रियों को संतुष्टि देते हैं, और गोपीजन वल्लभ जो है द ट्रांसेंडेंटल लवर ऑफ द गोपीज। सो कृष्णा हिमसेल्फ इज कॉल्ड मदन मोहन, Govind, Gopijana Vallabha, and countless other names as he plays in his different pastimes with his devotees. So the three deities Madan Mohan, Govinda and Gopijana Vallabha have very specific qualities. Okay, worship of Madan Mohan is on the platform of re-establish our forgetting relationship with the Supreme Personality of Godhead. In the material world, we are presently in utter ignorance of our eternal relationship with the Supreme Lord. Pangoha refers to one who cannot move independently by his own strength, and Manda Matehe is one who is less intelligent, because he is too absorbed in material activities. It is best for such person not to aspire for success in fruitive activities or mental speculation, but instead simply to surrender to the Supreme Personality of Godhead. The perfection of life is simply to surrender to the Supreme Personality of Godhead. In the beginning of our spiritual life, we must therefore worship Madan Mohan so that he may attract us and nullify our attachment for material sense gratification. तो संबंध कई बार जो लोग हैं अज्ञान के अंधेरे में, इसलिए व्यक्ति को आशीर्वाद चाहिए, इसलिए भगवान मदन मोहन जो है व्यक्ति हमको संबंध अवगत करके देते हैं उनके प्रति, भगवान के प्रति हमारा संबंध क्या है। दैट्स व्हाई मदन मोहन, द रिलेशनशिप विद मदन मोहन इज नेसेसरी फॉर न्यूफाइड डिवोटीज। एंड देन व्हेन वन विशेस टू रेंडर सर्विस, एक स्टेप आगे जाता है, जब संबंध पता चलता है एंड सेवा करने की भाव जब प्रबल हो जाता है, तभी व्यक्ति गोविंद को दिव्य स्तर पर गोविंद की सेवा करता है। सो गोविंद इज रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, सभी आनंद के स्रोत हैं। एंड व्हेन बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड द डिवोटीज वन रीचेस द प्लेटफॉर्म इन डिवोशनल सर्विस, जब वो भक्तिमय सेवा में रत हो जाता है, देन ही कैन अप्रिशिएट कृष्णा एज गोपी जन वल्लभ और गोपीनाथ, द प्लेजर डिटी ऑफ द डैमसेल ऑफ व्रज। सो वन शुड नॉट डायरेक्टली जंप। सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिवोशनल सर्विस in 3 stages here. Okay, and therefore these worshipable deities were installed in Vrindavan by different Goswamis, and they are very dear to the Gaudiya Vaishnavas who visit the temples at least once a day. कई वैष्णव जो हैं रोज दर्शन करते हैं। So besides the temples of these 3 deities, many other temples have been established in Vrindavan. That is जीव गोस्वामी के राधा दामोदर है जो कि हम देखते हैं, श्याम सुंदर ऑफ श्यामानंद गोस्वामी, एंड गोकुलानंद जो लोकनाथ गोस्वामी के इष्ट हैं, और राधा रमन ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो देयर आर 7 प्रिंसिपल टेम्पल्स ओवर 400 years old that are the most important of the 5000 temples now existing in Vrindavan. प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिस टेम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट, स्पेशली द 7 temples. Gaudiya indicates the part of India between the southern part of the Himalayan mountains and the northern part of the Vindhya hills, which is called Aryavrata, or the land of the Aryans. This portion of India is divided into 5 parts of province: Saraswata, that is Kashmir and Punjab; Kanyakubja, Uttar Pradesh including the modern city of Lucknow; Madhya Gauda, Madhya Pradesh; Maithila, Bihar, part of Bengal; Utkala, part of Bengal, the whole of Odisha. Okay, Bengal is sometimes called Gaudadesha, partly because it forms a portion of Maithila, and partly because the capital of the Hindu king Raja Lakshmana Sen was known as Gauda. This old capital later came to be known as Gaudapura and gradually Mayapur. Okay, यहाँ पे ऐसा है इसका मीनिंग। मायापुर कैसे यहाँ पे है, पहले गौड़ापुर था, फिर आई थिंक ग्रेजुअली इट बिकम्स मायापुर।
तो पहले गौड़ ही बोलते थे उस प्रदेश को. द डिवोटीज ऑफ ओडिशा आर कॉल्ड उड़ियास, द डिवोटीज ऑफ बंगाल आर कॉल्ड गौड़ियास, and the devotees of southern India is called as Dravida devotees. And there are 5 provinces in Aryavrat. So Dakshinatya, southern India, is also divided into 5 provinces which are called Pancha Dravida. The 4 Vaishnava acharyas who are great authorities of the 4 Vaishnava disciplic successions. So can anyone tell me what are the 4 sampradayas? Okay, तो श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय. सो रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, they were all coming from South India. Okay, Chaitanya Mahaprabhu accepted the chain of disciplic succession from Madhvacharya, but the Vaishnavas in his line do not accept the Tattvavadis. अभी देखिए मध्वाचार्य संप्रदाय में हमें भेद है. मध्वाचार्य भले ही चैतन्य महाप्रभु जो है मध्वा संप्रदाय के संप्रदाय से ही दीक्षा लिए हैं, और मध्वा संप्रदाय के दीक्षा किनसे लिए हैं, उनका नाम क्या है, माधवेंद्र पुरी के शिष्य जिनका नाम है ईश्वरपुरी. माधवेंद्र पुरी कमिंग फ्रॉम मध्वाचार्य लाइन. और मध्वाचार्य कभी भी श्रीमती राधा रानी का उपासना उनके लीलाओं में, मध्वाचार्य की लीलाओं में नहीं की गई है. मध्वाचार्य के संप्रदाय में राधा कृष्ण का उपासना नहीं है, कृष्ण की तो उडुपी कृष्ण आप देखेंगे. तो दिस हैज बीन एडेड बाय माधवेंद्रपुरी एंड देन लेटर ऑन एक्सेप्टेड बाय दिस संप्रदाय इटसेल्फ. तो तत्ववादी हैं, उनका सदैव इसमें ही प्रयास रहता है कैसे मायावाद का खंडन करना खास करके. और तात्विक वो सदैव थोड़ा ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान पर बहुत ज़्यादा प्रबल जोर है और बहुत सारे नियम पर उनका डिटी वर्शिप में बहुत कड़क होता है, बहुत सारे इसमें नियम होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड तत्ववादीज. एंड आर गौड़ीय वैष्णव इज डिफरेंट फ्रॉम द तत्ववादीज. वी आर नॉट इनटू डिबेट्स एंड ऑल दैट. हम तत्ववादी नहीं हैं. सो डिस्टिंग्विश देमसेल्फ क्लियरली फ्रॉम द तत्ववादी ब्रांच of Madhava's descendant, the Vaishnavas of Bengal prefer to call themselves as Gaudiya Vaishnavas. Sri Madhvacharya is also known as Gauda Purnananda. Okay, Sri Gauda Purnananda भी उनका नाम है. And therefore the name Madhava Gaudiya Sampradaya is quite suitable for the disciplic sections of the Gaudiya Vaishnavas. Our spiritual master Om Vishnupad Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj accepted initiation in the Madhva Gaudiya Sampradaya. So here we will stop till 1.19, the first chapter. Okay.